Today we will do component of force in a given direction. The definition of component of force in a given direction can be given as any given force acting on a particle can be resolved into two or more components. It means कोई भी फोर्स, अगर कोई भी फोर्स किसी पार्टिकल A पर एक्ट कर रही है, सपोज दिस इज फोर्स F acting along the direction AC on a particle A, then this force can be replaced by two or more forces which have the same effect on the particle. तो एक अगर इस फोर्स F को कुछ दो या दो से ज्यादा फोर्सेस में रिजोल्व किया जा सके इस तरह से कि उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो फोर्स F ही हो, तो उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं, उन डिफरेंट फोर्सेस को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स F. फॉर एग्जांपल इस फिगर में F फोर्स को रिजोल्व किया गया है अलोंग डायरेक्शन AB एंड अलोंग डायरेक्शन AD in terms of two forces P and Q, such that P is inclined to force F at an angle alpha and force Q is inclined to force F at an angle beta. अब इस केस में देखिए, a force F can be resolved into two components P and Q by drawing a parallelogram which has F for its diagonal. The components P and Q are then represented by the two adjacent sides of the parallelogram and can be determined either graphically or by trigonometry. तो अब इसमें ये समझाया गया है कि यदि किसी फोर्स F को केवल दो फोर्सेस में कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, किसी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, सपोज F और सपोज Q, तो F फोर्स जिसको कि P और Q में हमने रिजॉल्व किया है, ये P और Q यदि एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, फोर्स P और फोर्स Q को लेकर यदि कोई पैरेललोग्राम फोर्स को फॉर्म किया जा सकता है, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट विल बी फोर्स F. मतलब ये इनडायरेक्टली कन्वर्स है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का. अब हमने यहाँ पर सपोज किया है कि एंगल CAB इज इक्वल टू अल्फा. माना है हमने कि एंगल CAB जो है वो अल्फा है. दैट इज एंगल बिटवीन, दिस इज एंगल बिटवीन फोर्स F and P, right? Now angle between F and Q is angle CAD is equal to beta. That is angle between force F and Q. Now in this parallelogram, since opposite sides are equal, that is AD is equal to line BC, therefore BC is equal to force Q. BC will represent force Q. BC is equal to AD is equal to Q by parallelogram, by property of parallelogram. Opposite sides of a parallelogram are equal because opposite sides of parallelogram are equal. Now since this is a parallelogram, therefore angle ACB is equal to angle CAD. These are, since BC is parallel to AD and AC is transversal, therefore angle BCA is equal to angle CAD is equal to beta. इसमें ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. नाउ एंगल CBA is equal to 180 degree minus alpha minus beta.
बिकॉज दिस इज द थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल के अंदर एक एंगल ए अल्फा है, एक एंगल बीटा है, तो थर्ड एंगल क्या होगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। नाउ यूजिंग साइन formula which we had done in class 11th, according to sine formula in triangle ABC we have AB, side AB is proportional to sine of angle beta, sine C which is angle beta. Similarly, side AC is proportional to sine of 180 minus alpha minus beta is equal to BC upon sine of alpha. Now you know that length of AB is equal to P. AB is equal to P. So we can replace AB by P, and AC is equal to F, and we can replace AC by F. Also here we have proved that BC is equal to Q, so we can replace BC by Q. तो यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट बनता है टर्म, वी गेट AB की जगह हम लिख देंगे P अपॉन साइन बीटा, AC की जगह हम लिख देंगे F अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। BC की जगह लिख देंगे हम Q साइन ऑफ अल्फा। फ्रॉम हियर वी गेट the value of the value of P will be, this implies P is equal to F sin beta upon sine of alpha plus beta. Similarly, we can write the formula for Q. Q can be written as F of sine of alpha upon sine of alpha plus beta. Here you can see that जो P फोर्स निकाली है उसके साथ जो एंगल आ रहा है बीटा एंगल आ रहा है। बीटा वाज द एंगल बिटवीन F एंड Q। F और Q के बीच में एंगल था, और Q में यहाँ पर ऊपर क्या आ रहा है साइन अल्फा। अल्फा वाज एंगल बिटवीन P एंड F। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजॉल्व्ड कंपोनेंट ऑफ force can be written as F into sine of other angle divided by sine of sum of two angles जहाँ पे ये दोनों एंगल वो एंगल हैं जिनमें इसके कंपोनेंट्स जिस डायरेक्शन में F के कंपोनेंट्स अलाइंड हैं। नाउ द अदर टर्म इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब देखिए रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स में कितना अंतर है कि आपने इस केस में जो फोर्स है R फोर्स को ऐसे दो हिस्सों में कंपोनेंट्स निकालने हैं कि इन दोनों का आपस में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। इफ द टू कंपोनेंट्स are inclined at 90 degree to each other, then these components are said to be resolved part of force R. So component of force में और resolved part of force में यही अंतर है कि दोनों फोर्सेस जो जिन फोर्सेस की टर्म्स में जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो एंगल है रिजॉल्व पार्ट में उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, केवल यही अंतर है। सो रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ R, अगर रिजॉल्व पार्ट निकालना है इस केस में R का रिजॉल्व पार्ट निकालना है, सपोज इट इज इन डायरेक्शन ऑफ X, इन डायरेक्शन ऑफ OX की डायरेक्शन में यदि हमने निकालना है तो इस केस में F
here we will get, यही फॉर्मूला यूज करते हुए हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि r को रिजॉल्व कर रहे हैं, r इंटू साइन ऑफ अदर एंगल। अदर एंगल यदि इस OX डायरेक्शन में और R डायरेक्शन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, तो दूसरा जो रिजॉल्व पार्ट है और रिजल्टेंट R में क्या एंगल होगा, 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स। अब यहाँ पर नीचे क्या आएगा, दोनों एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री। सो साइन ऑफ 90 डिग्री। सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो रिजॉल्व पार्ट बनेगा दैट इज विल बी आर कॉस अल्फा। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिजॉल्व पार्ट ऑफ दिस फोर्स आर इन डायरेक्शन ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर इन डायरेक्शन ऑफ y in OY डायरेक्शन। OY डायरेक्शन में निकालेंगे देन दैट विल बी इक्वल टू r साइन ऑफ अल्फा। अब P के साथ इस OX के साथ एंगल क्या है, अदर एंगल क्या है, अल्फा है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री। अगेन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू r साइन अल्फा। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स का ये फॉर्मूला है। यदि हमें कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और यदि रिजॉल्व पार्ट निकालने हैं तो फॉर्मूला अलोंग एक्स एक्सिस रिजॉल्व पार्ट होगा r cos अल्फा, अलोंग y एक्सिस रिजॉल्व पार्ट होगा r sin अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड फोर्स r, राइट। नाउ वी विल डू सर्टेन न्यूमेरिकल एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज इफ अ फोर्स f, यदि एक फोर्स f को हम रिजॉल्व करें, बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट फोर्सेस, उसको दो कंपोनेंट फोर्सेस में रिजॉल्व करें। से हेयर इन दिस फिगर वी हैव शोन फोर्स F बाय लाइन OB। फोर्स F को हमने OB लाइन से रिप्रेजेंट किया है और इसको दो फोर्सेस में रिजॉल्व किया है, अलोंग OA एंड अलोंग OC। अब आगे क्या बताया है, एंड इफ वन कंपोनेंट बी एट राइट एंगल टू F। यहाँ पे ये बताया कि एक कंपोनेंट जो है, वन कंपोनेंट इज एट राइट एंगल, दैट इज इट इज एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। फोर्स F और एक कंपोनेंट के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, और इस कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज गिवन टू बी √3f। इट इज गिवन टू बी √3f, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन टू बी √3f। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर कंपोनेंट। तो जो दूसरा कंपोनेंट है अलोंग OC डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको और उसका एंगल निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ P। let F be resolved into two components along OA and OC. Now angle between angle BOA is given to be 90 degree. Therefore कंपोनेंट का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, कंपोनेंट ऑफ F along OA is given by the formula sin of other angle। यहाँ पर अदर एंगल, अब यहाँ पे अदर एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट अदर एंगल बी एंगल BOC बी इक्वल टू थीटा। तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय F साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स। First angle is 90 degree, another angle is theta, sin of 90 plus theta. Now component of F along OA हमारे को कितना दिया है, √3f। So this is equal to √3f is equal to F sin theta. Now sin 90 plus theta is equal to cos of theta. Now this F will be cancelled. तो यहाँ से हमारे पास we get √3 is equal to √3 is equal to tangent of theta. This implies this is equal to tangent of, this is the value of tangent of 60 degree. So theta is equal to 60 degree. So we have found the direction theta now. Next we have to calculate the value of this force along OC. Now component of F along OC
is given by the formula f sine of other angle. Sine of other angle is here sine 90 degree divided by sine 90 plus theta. Sine 90 plus theta is equal to, now theta is 60 degree. So this is equal to sine 90 is 1 f upon this formula is sine 90 plus 60 is equal to cos of 60 degree, and value of cos of 60 degree is equal to 1 by 2. So this force, value of this force is equal to 2F. So value of this force P is 2F. Next we will do another example. In this example we have given the resultant of two forces P and Q is R. दो forces हैं P और Q, उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है. अब देखो पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे हम विद फोर्सेस P एंड फोर्स Q. P अलोंग वन साइड ले लेंगे OA और Q हम ले लेंगे अलोंग साइड OB, और उसका रिजल्टेंट R हम डायगोनल की तरह ले लेंगे. पैरेललोग्राम OACB का जो डायगोनल है इट विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट R ऑफ P एंड Q. नेक्स्ट क्या दिया हुआ, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ R इन द डायरेक्शन ऑफ P इज ऑफ मैग्नीट्यूड Q. रिजॉल्व पार्ट in the direction of P is equal to Q. रिजॉल्व पार्ट हम कैसे निकालते हैं, देखो कंपोनेंट ऑफ फोर्स में और रिजॉल्व पार्ट में यही अंतर था. रिजॉल्व पार्ट, अब इस केस में रिजॉल्व पार्ट बोला है, तो रिजॉल्व पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, R cos, रिजॉल्व पार्ट इज गिवन बाय R cos of theta, where theta is angle between R and this force P. ठीक है. Now this is given to be equal to Q. Now what is R? R is diagonal OC. So in place of R I can write OC. And what is cos theta? Cos of theta. Now draw perpendicular. Draw CD perpendicular on the line OD produced. And complete triangle OCD. Now triangle OCD is a right angle triangle. OCD एक right angle triangle है. Also triangle ACD also a right angle triangle. Right angle at angle D. So cos theta, theta is angle in the triangle COD. In triangle COD triangle के अंदर cos थीटा की वैल्यू क्या बनती है, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हियर व्हाट इज बेस, बेस इज OD and hypotenuse is OC. So value of cos theta I can write here as OD upon OC. Now OC will be cancelled, we get this value as OD. So value of Q, this Q comes out to be equal to OD. OD की Q की वैल्यू किसके बराबर आती है, OD. Now what is OD? OD is equal to OA plus AD. OD को हम फर्दर लिख सकते हैं OA plus AD. And value of OA is P. OA is equal to P. And value of AD is Q cos of alpha, where alpha is this angle. देखो ये कैसे आया, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल के अंदर. अब देखो AC पैरेलल है BO के, और इसलिए एंगल BOD विल बी इक्वल टू एंगल ACD. कौन से एंगल है ये, these are known as corresponding angles. This angle is equal to alpha, so this angle will also be equal to alpha. So यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इस केस में इस ट्रायंगल में क्या है, AD अपॉन इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, और AC की वैल्यू क्या है, Q. तो यहाँ से AD की वैल्यू बन जाएगी Q cos अल्फा. यही वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है, इस केस में AD की वैल्यू पुट की है Q cos अल्फा. सो Q इज इक्वल टू P प्लस Q cos अल्फा. यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम, इसको उधर ले जाएं, Q कॉमन आ जाएगा 1 माइनस cos ऑफ अल्फा. द वैल्यू ऑफ
1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या था, शो दैट द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज दिस। यहाँ स्टार्टिंग में क्या दिया है, फोर्सेस के बीच में जो एंगल है दैट इज दिस। फोर्सेस कौन सी हैं, फोर्स P और फोर्स Q, इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड दिस अल्फा। ठीक है, ये अल्फा फाइंड आउट करना। देखो अल्फा की रिलेशनशिप आ गई यहाँ पर P Q और अल्फा के बीच में, जो लगभग इस जैसी ही दिखती है। इसको फर्दर यदि मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो हमारे पास आता है, वी गेट P अपॉन 2Q इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। इस स्क्वायर को इधर ले जाऊं मैं तो ये बन जाएगा रूट P बाई 2Q। दिस implies रूट P बाई 2Q is equal to sin alpha by 2. From here alpha comes out to be sin inverse P by 2Q रूट into 2। यही हमने शो करना था। We have to show that angle between two forces is this. Next we have to do example 3. In example 3 we are having two forces P and Q. दो फोर्सेस हैं P और Q। देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल में, इस फिगर में देखिए दो फोर्सेस हैं, फोर्स P और फोर्स Q। ये दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है दैट इज दिस लाइन OC। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय OC। ठीक है, व्हाट इज गिवन, टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ये दोनों के फोर्सेस के बीच में आपस में जो एंगल है दैट इज एंगल थीटा। इफ द सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन Bx, अब इसने बोला है रिजॉल्व पार्ट्स अलोंग सम डायरेक्शन। लेट ये जो डायरेक्शन है हम अपनी तरफ से एक्स एक्सिस ले लेते हैं। सो लेट रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस बी एक्स। ठीक है, रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्स P, फोर्स P का अगर हमें रिजॉल्व पार्ट निकालना है तो हमें फोर्स P और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल चाहिए। तो एंगल हमने मान लेते हैं, लेट दिस एंगल बी अल्फा। लेट एंगल AOX इज इक्वल टू अल्फा। सो रिजॉल्व पार्ट अगर P का निकालना है, P का रिजॉल्व पार्ट का फॉर्मूला क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग P कॉस अल्फा। इसी तरह से Q फोर्स का भी रिजॉल्व पार्ट हम निकाल लेंगे, वो बनेगा Q कॉस अल्फा प्लस थीटा। ये अल्फा प्लस थीटा क्यों आया, क्योंकि जो फोर्स Q है वो एंगल कितना बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, वो देखो यहाँ पर एंगल बनाती है थीटा प्लस अल्फा। सिमिलरली हम रिजॉल्व पार्ट निकाल सकते हैं, रिजॉल्व पार्ट अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व पार्ट निकाल सकते हैं। इसने बोला है कि दैट रिजॉल्व पार्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज एक्स एंड दैट अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज वाई। और वाई एक्सिस के अलोंग जो रिजॉल्व पार्ट है वो वाई दिया है, तो यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व पार्ट निकालेंगे तो ये P साइन अल्फा प्लस Q साइन अल्फा प्लस थीटा ये बन जाएगा। अब इसने क्या बोला है, प्रूव दैट थीटा इज दिस। अब देखो ये दो रिलेशनशिप आ गई यहाँ से, इन दोनों लाइन से, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमने ये थीटा निकालना है। अब देखो यहाँ कॉस अल्फा है, यहाँ साइन अल्फा है, अगर इसको स्क्वायर करके ऐड कर दे तो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा का सम 1 हो जाएगा। ऐसे ही इस केस में 1 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई होकर किसी ना किसी तरीके से ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मार्क करो, लेट दिस बी 1, लेट दिस बी 2। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दें। इस तरफ आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरी तरफ आएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बनेगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। दूसरी टर्म बनेगी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, प्लस तीसरी टर्म इसी केस में बनेगी 2pq कॉस अल्फा प्लस थीटा। तो ये तो अभी हुआ सिर्फ इस पार्ट का स्क्वायर। अब इस पार्ट का स्क्वायर बनेगा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस 2pq साइन अल्फा प्लस थीटा।
आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कॉमन लेने में बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इन दोनों पार्ट में ये देखो ये टर्म और ये टर्म में पी स्क्वायर कॉमन ले लिया प्लस क्यू स्क्वायर इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है। क्यू स्क्वायर कॉमन लेने पे ये बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। अब इन दोनों की इसकी वैल्यू क्या है, इस टर्म की वैल्यू है 1, इस टर्म की वैल्यू भी क्या है 1 और आगे क्या बचता है 2pq। दोनों में यहाँ पे 2pq है कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा cos अल्फा प्लस थीटा और यहाँ बचेगा प्लस साइन अल्फा प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस b। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। तो अल्फा से अल्फा कैंसल्ड, ये बना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos of minus theta. Now we know that cos of minus theta is equal to cos of theta. तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos of theta। हमें क्या निकालना था, वी हैड टू फाइंड दिस थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करें cos थीटा की वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2pq। So theta will be equal to cos inverse of x square plus y square minus p square minus q square upon 2pq. So this was the angle which we had to find. देखिए यही एंगल हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। So we have solved this sum also. Thanks for watching.